Hello students, here we are once again with JPSC Digital Study. Students, today we are going to learn about the chapter 5 of your prose, The Alien Planet, The Green Movement's Road. Was written by Naini Palkhiwala, who was a Persian. He was born in a Persian family in 16 January 1920 at Bombay, which is called today Mumbai. He was died on 11/2002. He has got his education at St. Xavier's College Autonomous at Mumbai and University of Mumbai. He was a very good jurist and a writer and also a very well-known economist. He had two children named Amy Raina and Behram A. Palkhiwala. He became the Indian ambassador in United States in 1977. He had got the Padma Vibhushan Award from the Indian government. He had written many books for the development of our country, and some of them are We the Nation, The Last Decades. Second one is We the People, India, The Largest Democracy. Both of the books were published in 1994. The Law and Practice of Income Tax, The Global Economy. As we know that he was a very good economist, he had written the books for the economic problems of India. In this relation, the alien planet, he had described about the earth, how the earth is becoming weak due to the nature of human beings. He says the human is not the master of the earth. Man's survival only depends on the survival of the earth. वह कहते थे कि मनुष्य जो है वह पृथ्वी का स्वामी नहीं, मनुष्य तभी उसका अस्तित्व है जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है. So let's read the lesson and know about the whole lesson. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago in 1972. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement had not been looked back. As the writer wants to say, that the revolution for saving the earth, which was begun before 25 years ago in New Zealand, the whole world was thinking about the development of this movement and to shape the earth. One cannot recall any moment in world history. The writer wants to say that no one can recall the real time that from when the people wants to begin, the people begins to thinking about the saving of the earth. यह बताया ही नहीं जा सकता, या वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि इतिहास के किस आंदोलन की वजह से जो मानव की गति थी, ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली, मीन्स इतनी तीव्रता से और इतनी तेज गति से, इतनी मजबूती से किसने मानव की कल्पना को जकड़ लिया. मीन्स टू से वह कहना चाहता है कि यह सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मानव की कल्पना शक्ति को इतनी मजबूती और तीव्रता के साथ किस आंदोलन के द्वारा जकड़ लिया गया है. About Green Movement which started nearly 25 years ago. जो पार्टी हरियाली आंदोलन की स्थापना which started nearly 25 years ago, जो कि लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी, उसने इतनी शीघ्रता से कैसे जकड़ लिया है. The writer wants to say, राइटर कहता है कि याद ही नहीं आता कि मानव कल्पना की शक्ति को इतनी मजबूती और इतनी तीव्र गति से किसी आंदोलन ने जकड़ लिया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट मीन्स हरियाली आंदोलन ने, विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago, जो कि लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था. In 1972, the world's first
नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड, क्योंकि 1972 में विश्व की फर्स्ट नेशन वाइड मीन्स विश्वव्यापी जो हरियाली पार्टी थी वॉज फाउंडेड, उसकी स्थापना हुई इन न्यूजीलैंड में। सिंस देन तभी से द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanist view to a holistic and ecological view of the world. We have shifted, we hope, from the mechanical view to holistic and ecological view of the world. We have to think instead of mechanism to ecological view. राइटर कहता है कि हम आशा करते हैं कि हमने संसार के प्रति our view means हमारा दृष्टिकोण to a holistic and ecological view means holistic means सार्वभौमिक एंड इकोलॉजिकल मीन्स पर्यावरणीय। हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? यांत्रिकी से हटकर, फ्रॉम मैकेनिज्म टू इकोलॉजिकल मीन्स यांत्रिकी दृष्टिकोण से हट करके पर्यावरणीय दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारे द्वारा बना लिया जाना चाहिए। इफ इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपर्निकस, who thought mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. It is a shift in human perception as revolutionary. The writer says that it is as revolutionary for the human being as the Copernicus said at earlier in 16th century that the earth and the other planets were revolving to the sun. राइटर कहता है कि मानव के ज्ञान के बारे में इतना ही रिवोल्यूशनरी, इतना ही क्रांतिकारी है जितना कि कोपर्निकस का बयान जो उन्होंने 16वीं शताब्दी में दिया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। For the first time in human history, क्योंकि मानव इतिहास में पहली बार an enormous being, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. क्योंकि मानव इतिहास में यह पहली बार इस तरह का कॉन्शियसनेस बढ़ा था, इस तरह की चेतना बढ़ रही थी कि पृथ्वी भी एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, एक जीती जागती संगठना है, अवयवी संगठना है, ऑर्गेनिज्म है। an enormous being of which we are part, और उस पर एक विशाल समुदाय प्राणियों का है जिसके कि हम स्वयं भी एक अंग हैं। It has its own metabolic needs and vital process which needs to be respected and preserved, and there are some organisms, some metallic प्रोडक्ट्स दैट वी हैव टू शेप। और कहता है कि इस पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं और जीवन से संबंधित क्रियाएं हैं। शारीरिक पोषण और जीवन से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं जिसको कि सुरक्षित और संरक्षित किया जाना और उसका आदर किया जाना आवश्यक है। The earth's vital signs reveal a patient in decline health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. And we have to think, and we have begun to think about the future generation, to share earth and make it precious, make it prosperous for the human being who comes in future on the earth. And the earth, writer wants to say the earth vital signs reveals a patiently declining health. The writer says that due to the human activities, the health of the earth is going to at bad time condition. वो कहता है कि मानव की कार्यों के कारण, मानव के द्वारा किए गए उपभोगों के कारण, उसके द्वारा किए गए कर्तव्यों के कारण कुछ इस पृथ्वी की स्थिति जो है वह दयनीय होती जा रही है। यानी मनुष्य
पृथ्वी की सुरक्षा के बारे में न सोच करके कभी कभी ऐसा एक्ट करता है जिससे इसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet. और अब हमें अवश्य ही अपने इस सुंदर ग्रह को बचाने के बारे में विचार करना चाहिए। To be good stewards of the planet as responsible trustees of the legacy to future generation. और इसलिए भी बचाना चाहिए क्योंकि इस ग्रह के एक उत्तरदायी नागरिक हैं, इसके एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं जिनको कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिस कारण से इसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सम्रांत बनाने की आवश्यकता है। और हमने अपने इन कर्तव्यों को करना शुरू भी कर दिया है। The concept of sustainable development was popularized in 1987. Sustainable means permanent development, means एक अस्थाई विकास की का विचार जो था वह पॉपुलराइज्ड इन 1987। यह हमारा स्थायी पृथ्वी के स्थायी विकास का जो विचार था यह 1987 में लोकप्रिय हुआ बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। किसके द्वारा? विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग के द्वारा। In its report, it defined the idea as development that meets the need of the present, without compromising the ability of future generations to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generations would need. In its report, it defined, और इसकी जो इसका जो विचार था इसमें इसकी व्याख्या की गई थी कि द आइडिया इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, कि ऐसा विकास हो जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन्स की, आने वाली पीढ़ियों की क्षमताओं और उनकी आवश्यकताओं के बारे में कॉम्प्रोमाइज किए बिना, मीन्स इसके बदले में उनको ना मिले ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि मैं उनके क्षमता और उनके नीड को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमता उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य हों, ऐसा इस कमीशन का विचार था। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचर वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, अर्थात विश्व में से, उस पृथ्वी में से उन स्रोतों से वंचित नहीं किया जा सकता, उन स्रोतों को खत्म नहीं किया जा सकता जो आने वाली पीढ़ियों को जिनकी आवश्यकता है, मीन्स जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं उन संसाधनों को इतना संरक्षित किया जाए अपने आप के लिए उपभोग करते हुए भी कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति उस संसाधन से हो सके। इन द जू एट लुकाशा जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, क्योंकि वह कहते हैं कि जाम्बिया के लुशाका नाम के एक चिड़ियाघर में एक नोटिस लिखी हुई है, एक पिंजरा है जिस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां पर लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर इसी पिंजरे में है और वहां पर और कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, बड़ा सा शीशा लगा हुआ है जहां आप जाएंगे और अपने आप को स्वयं को देखेंगे। मीन्स टू से जो विश्व का सबसे खतरनाक प्राणी है वह कौन है? केवल ह्यूमन बीइंग है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। और इस तरह जो अलग अलग देशों में कई तरह की एजेंसियां इस तरह का कार्य कर रही हैं, मानव को अपना अस्तित्व दिखाने का कार्य कर रही हैं, अवश्य वह उनका प्रोत्साहन किया जाना आवश्यक है। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world, और इसके कारण विश्व के सबसे खतरनाक प्राणी होने की चेतना मनुष्य के रूप में हमारे मन में जागृत हो गई है और हम अपने कर्तव्यों के प्रति अग्रसर हैं। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. And the human being has realized that not
only show to himself the wise, he had to do some work to the development, to the conservation of the earth. और मानव यह समझ गया है कि कहीं भी बुद्धिमानी दिखाने की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह आने वाले जो एजेंसियां हैं, जो तरह तरह की अवेयरनेस करने वाली, जागृत करने वाली एजेंसियां हैं, उनमें अपनी भागीदारी को स्थापित करे और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कार्य करे, और हमारा जिससे हमारा यह प्लैनेट जो है वह सुरक्षित रहे. Dear students, read the lesson till here with the help of this video. We will meet with the next part of the lesson in the next video. Till then, thanks.